Good morning, dear students. Now this is your science class. In this class, we will study about coal and petroleum. स्टूडेंट्स आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 coal and petroleum. You know about petroleum very well. Okay, so let's start. Students, first I will read this chapter. After that, I will explain it. Okay. The materials that are present in nature and are useful to us in fulfilling our basic needs are called natural resource. So here is given about natural resources. Students, resources means जो हमारी बेसिक जो नीड्स होती हैं उनमें जो हेल्पफुल होती हैं, ओके, जो यूजफुल होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रिसोर्सेस होते हैं. ओके, तो उसी में आता है नेचुरल रिसोर्सेस. तो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस? द मटेरियल द materials that are present in nature and are useful to us in fulfilling our basic needs are called natural resources. जैसे एयर, वाटर, सॉइल, coal, petroleum, minerals, plants and animals are natural resources. So these are example of natural resources. Okay, जैसे air, water, soil, coal, petroleum. So these are natural resources. Okay. Now, depending upon the abundance and ability of various natural resources, they can be broadly classified into. और जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम टू टाइप्स में इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. सेकंड होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. तो these resources are present in unlimited quantity. तो ये क्या होते हैं? अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जाम्पल्स ऑफ these resources are sunlight, air, water, rainfall, clay and sand. So these are the examples of inexhaustible natural resources. Now, second, exhaustible natural resources. These resources are present in limited quantity. Students, what is the difference between inexhaustible and exhaustible natural resources? जो ये स्टूडेंट्स ये जो वाले ये होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो ये क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं. ओके, इनकी कोई लिमिट नहीं होती. बट जो एग्जॉस्टेबल होते हैं ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये लिमिट में होते हैं. ओके, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. तो ये डिफरेंस है इनके बिटवीन, इनके बीच में. ओके, तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are likely to exhaust over a certain period of time by human activities. Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum and natural gas. These are the example of exhaustible natural resources. Okay.
Students, here is given some pictures of natural resources. The first, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources: sunlight, water, okay, forest, wildlife. So these are the natural resources. Students, now in this chapter we will learn about exhaustible natural resources such as coal, petroleum, and natural gas. The minerals that are want to produce power or heat energy are called fuels. So what is fuels? Here is given a term, fuels. So what is fuels? The materials that are want to produce power or heat energy are called fuels. The remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. Here is also given about fossils. What is fossils? Fossils होते हैं स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं, ओके, जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मिलियंस ईयर पहले क्या होते हैं, वो जो अर्थ होता है उसके अंदर दबे रहते हैं, ओके, और वो बाद में चल के क्या ये फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं. Fuels like coal, petroleum, and natural gas are all formed from these dead remains of plants and animals buried under the earth millions of years ago. So, these are all called fossils fuels. Okay, तो ये सारे क्या होते हैं, fossils fuels होते हैं. Now, in this term, we will study about coal. Okay, so what is coal? First of all, we will know about coal. Coal is a fossil fossil fuel. So what is coal? Coal is a fossil fuel. It is hard and black in color. Coal is found in deep coal mines under the surface of earth in the form of coal beds. तो ये कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टूडेंट्स, ये फॉसिल्स फ्यूल होते हैं कोल, ओके, और ये ब्लैक इन कलर में होते हैं, और ये जो अर्थ होता है, अर्थ के और डीप में जाके ये कोल मिलते हैं, ओके. इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. दीज आर द स्टेट जहाँ पर ये कोल मेनली मिलता है, ओके. नाउ students, here is a term is carbonization. So what is carbonization? The slow chemical process of the conversion of the dead vegetation, remains of dead plants, into coal under the influence of high temperature and pressure is called carbonization. ओके, तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? स्टूडेंट्स, एक ये स्लो केमिकल प्रोसेस होता है, और इसमें क्या होते हैं, जो डेड वेजिटेशन होते हैं, ओके, वो धीरे 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 कन्वर्ट होते हैं, ओके, और हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं कोल में, तो इसी को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ओके. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ हियर destructive distillation is the process of breaking
of coal by heating it to a high temperature in the absence of air. So here is given destructive distillation. So what is destructive distillation? This is a process. Okay, so this is a process of breaking of coal by heating it to a high temperature in the absence of air. Students, इसमें ये बताया है कि जो कोल होता है, ओके, अब हमें कोल तो मिल गया। अब कोल कैसे मिला है स्टूडेंट्स? वो कन्वर्ट हुआ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो हमारे डेड एंड प्लांटेशन होते हैं उनसे हमें कोल मिला। अब कोल से हमें क्या क्या लेना है? कोक, ओके, कोल तार एंड कोल गैस। तो ये कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं। ये इसकी इक्वेशन है। ओके, नाउ कोक। तो कोक इज ए टफ, porous and grayish black substance. Here is a picture of coke. Coke means कोला, जो कोला होता है, ओके, कोला, जिसको हम हिंदी में कोला बोलते हैं। ओके, कोक इज ए टफ, porous and grayish black substance. It obtained by the destructive distillation of coal. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। कोक इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये क्या होता है स्टूडेंट? कोक जो होता है ये प्योर फॉर्म होता है ऑफ कार्बन का। इट कंटेन्स 98% कार्बन, और इसमें कितना कार्बन होता है? 98%। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ कोक। Okay, coke is an essential raw material for iron and steel. ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक रॉ मटेरियल होता है आयरन एंड स्टील के लिए। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें हीट के लिए, हीटिंग के लिए ये रॉ मटेरियल होता है। Coke is used for a reducing agent in extraction of metals from their ores. और इसका स्टूडेंट्स थर्ड यूज है, coke is used for manufacturing producer gas, carbon monoxide and nitrogen, and water gas, carbon monoxide and hydrogen. Okay, so these are the uses of coke. Here is some pictures uses of coke. Okay, now we will describe about coal tar. You know very well about coal tar. स्टूडेंट्स, जब रोड बनते हैं तो वहाँ पर जो एक मटेरियल होता है ब्लैक, ओके, आपने देखा होगा जो रोड बनते हैं तो उसमें एक ब्लैक एक लिक्विड सा डाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोल तार होता है। ओके, वो क्या कहता है? उसको कहते हैं कोल तार। ओके, नाउ कोल तार इज ए ब्लैक विस्कस लिक्विड। ये यहां पर दिया हुआ है। ओके, ये क्या है? कोल तार है। इट इज ऑब्टेन बाय डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये अभी हमने देखा था कि जो कोल का हम ये करते हैं डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो इससे हमें तीन मटेरियल इसमें से मिलते हैं, कोक, कोल तार एंड
coal gas. Okay, students, it is not a single compound, it is a mixture of more than 200 different carbon compounds. और इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के कार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं. कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंस सच एज ए, और इसको जो कोल तार होता है इसको हम डिफरेंट सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, जैसे टॉलिन, बेंजीन, नैफ्थलीन, फिनॉल एटसेट्रा. तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस. और ये आप जब 11th 12th क्लास में आओगे तो इनके बारे में आप स्टडी करोगे. टॉलिन, बेंजीन, नैफ्थलीन, फिनॉल. ओके, इनके बारे में अच्छे से स्टडी करने को मिलेगा. तो दीज आर द सब्सटेंस ऑफ कोल तार. और ये जो स्टूडेंट्स ये सब्सटेंस हैं ये एक प्रोसेस से बनते हैं जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, तो हेयर इज गिवन ए न्यू टर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. These chemical substance are used as raw materials. और ये जो भी materials हैं इनका ये used होते हैं raw material की तरह. ओके, for manufacturing dyes, exclusive paints, varnish, okay, pesticides, plastics, synthetic fibers, photosynthetic materials, naphthalene balls, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा. ओके, स्टूडेंट्स ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो कोल तार से मिले हैं. डाई, ओके, एक्सक्लूसिव जिसको TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन, और ये पेंट. तो ये सब हमें किससे मिलते हैं? कोल तार से मिलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोल गैस. ओके, तो कोल गैस इज आल्सो ऑब्टेन बाय द destructive distillation of coal. Coal gas consists of three combustible gas, namely hydrogen, methane, and carbon monoxide. Coal gas has a high calorific value. Coal gas has a high calorific value due to the high calorific value of hydrogen and methane. स्टूडेंट्स जो कोल गैस होती है इनकी जो एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये हाई होती है. ओके, और ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड मीथेन होता है. इट वांट्स टू प्रोड्यूस हीट, और जब इसको हम हीट करते हैं, जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें से क्या हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, इसमें से हीट निकलती है. दैट इज वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल. और ये क्या होता है? एक अच्छा फ्यूल होता है. ओके, नाउ फोर्थ इज अमोनियम कंपाउंड. ओके, स्टूडेंट्स जो हमने कोल का भी हमने देखा जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था तो उसमें एक अमोनिकल लिक्विड. ओके, अमोनिया का एक लिक्विड की तरह एक उसमें से एक मटेरियल्स और बनता है जिसको बोलते हैं अमोनियम कंपाउंड. ओके, तो ये क्या होते हैं? अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं. During destructive distillation of coal, ammonium compounds are produced which when dissolved in water form ammonical liquor. It is used to manufacture nitrogenous compounds. और इसका हम यूज किस में करते हैं? जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है अमोनियम कंपाउंड्स का. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम. ओके, स्टूडेंट्स अभी तक हमने स्टडी किया था कोल के बारे में. ओके, अब करेंगे हम पेट्रोलियम.
पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर एंड थिक ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है. इन ग्रीक लैंग्वेज पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल. सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स. स्टूडेंट्स, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को टू वर्ड में इसको ब्रेक किया है. तो फर्स्ट है पेट्रा. ओके, पेट्रा मीन्स रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल. जो रॉक से ऑयल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम. Now we will discuss about formation of petroleum. Petroleum was formed by the decomposition of dead remains of plants and animals buried under the sea millions of years ago. Students, जो फॉसिल्स फ्यूल होता है वो हमें अर्थ के जो सरफेस में मिलियंस ईयर एगो जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स थे उससे मिलता है. ऐसे ही हमें पेट्रोलियम मिलता है. ओके, पेट्रोलियम क्या है? इसमें जो सी होता है, सी के नीचे जब प्लांट्स और एनिमल्स मर के तो हम उसमें दब जाते हैं. ओके, तो आफ्टर मिलियंस ईयर्स तो वे हमें पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलने लगता है. Petroleum is a mixture of several hydrocarbons having one or more than 100 कार्बन एटॉम्स. तो ये स्टूडेंट्स ये मिक्सचर होता है. ओके, हाइड्रोकार्बन्स का. नाउ हेज स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है कि कैसे हम पेट्रोलियम होता है उसको हम कैसे निकालते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है जहाँ लिखा है ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, एक सरफेस है अर्थ का. ओके, तो ये लेयर बनी हुई है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट. फिर उसके नीचे ये वाली लेयर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं इम्प्रीवियस रॉक. ओके, ये है इम्परवियस रॉक. और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें आता है ये वाली जो येलोइश कलर है. ओके, इसको बोलते हैं तो ये यहाँ पर मिलती है पेट्रोलियम. ओके, और उसके नीचे लेयर होती है फिर वाटर की, और उसके नीचे एक लेयर होती है रॉक की. ओके, ये है ड्रिलिंग रिंग. और यहाँ से जो येलोइश देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के ऊपर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या निकलती है? नेचुरल गैस. ओके, और ये मशीन होती है जिससे ड्रिल करके इसको निकाला जाता है पेट्रोलियम को. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके जो अभी हमने डायग्राम देखा है ये इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, इसको आप रीड करेंगे. ओके, हाउ टू पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड, कैसे पेट्रोलियम को निकाला जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है. ओके, तो ये इसका डायग्राम है एंड इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है. ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन आसाम, गुजरात. ओके, इट इज आल्सो फाउंड इन द रिवर वैसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. जहाँ पर स्टूडेंट्स गोदावरी और कृष्णा ये रिवर मिलती हैं आकर, उसको बोलते हैं वैसिन. और वहाँ पर भी क्या है? ये पेट्रोलियम निकलता है. ओके, नाउ we will study about refining of petroleum. अब कैसे कैसे स्टूडेंट्स हमें पेट्रोल तो मिल जाता है बट उससे कैसे कैसे हमें डिफरेंट फ्यूल उसमें से बनाते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस,
पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। तो ये क्या स्टूडेंट्स, जो पेट्रोलियम होता है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ओके, और किस किस का इसमें मिक्सचर होता है? पेट्रोलियम गैस का होता है, पेट्रोल का होता है, कैरोसिन का होता है, डीजल का होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मिक्सचर होता है ये। ओके, फ्यूल ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो नॉन इट इज नॉन एज क्रूड ऑयल। और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो हमारा पेट्रोलियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। ओके, पेट्रोलियम is known as crude oil because it cannot be used in the form in which it exists। और इसको हम क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जिस फॉर्म में ये हम इसे निकालते हैं, या हम इसे अर्थ के वहाँ से निकालें, या हम सी होता है वहाँ से निकालें, जैसा हमें मिलता है उस फॉर्म में इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। और इसका यूज करने के लिए इसे डिफरेंट स्टेप से इसको पास होना पड़ता है। ओके, वी नीड टू सेपरेट वेरियस constituents of petroleum, so it has to be purified or refined। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में इसमें गिवन है कि व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, तो व्हाट इज ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस constituents or useful fractions of petroleum is called refining of petroleum। Okay, I hope you understood students। Petroleum refineries in India are located at, और जो ये स्टूडेंट्स जो रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, ये हमारे इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड हैं? मद्रास, कोचीन, मथुरा, दिग्बोई, मुंबई, कोयली, हल्दिया एंड बरौनी। ओके, तो ये यहाँ पर हमारे इंडिया में ये रिफाइनरीज लोकेटेड हैं। नाउ ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ये डायग्राम गिवन है। ओके, तो ये ऐसे ऐसे ये है पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ये फैक्ट्री है जहाँ पर इसको डिफरेंट फ्यूल में इसको सेपरेट किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी शोइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, तो देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स देखेंगे कि यहाँ पे क्रूड, ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मीन्स अभी हमने जैसे देखा, जो हमें हम निकालते हैं उसको अर्थ के नीचे से, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल इसमें जाएगा तो ये डिफरेंट उसमें ये चेंज हो जाता है। देखो ये पैराफिन बैग्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे की लेयर, ऊपर की लेयर इसकी लुब्रिकेंट ऑयल की होती है, फ्यूल ऑयल, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ऐसे इसको उसमें सेपरेट कर दिया जाता है। ओके, क्रूड ऑयल को। नाउ हियर इज स्टूडेंट्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज आर गिवन टेबल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पेट्रोलियम्स के कुछ वो दे रखे हैं, टाइप्स हैं। ओके, और उसके यूजेस हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म कॉल्ड लिक्विफाइड। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये दिया है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ कार्बन कितने रहते हैं, और इसका यूज क्या होता है। ओके, ऐसे ये है गैसोलीन, और जिसको बोलते हैं पेट्रोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, और इसका यूजेस क्या होता है, इसका कहाँ पर हम यूज करते हैं। ऐसे कैरोसिन,
केरोसिन, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कार्बन ऑफ एटॉम्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, ये यहाँ पर गिवन है। एसिड डीजल, डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स स्टूडेंट्स जिस पर जो मटेरियल्स है वो स्टूडेंट्स बॉयल करने लगता है, ओके, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और डीजल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं और डीजल का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये यहाँ पर टेबल में गिवन है, तो ये आपको रीड करना है टेबल को, ओके। तो ये हैं स्टूडेंट्स, ये इसके 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ पेट्रोलियम के। नाउ here is given petrochemicals, okay, so what is petrochemicals? Many useful substances that are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals। तो ये केमिकल्स के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ओके। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड क्या होता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ओके। नाउ दिस इज अबाउट नेचुरल गैस। Natural gas is an important fossil fuel that occurs deep inside the earth between two layers of non-porous rock। तो नेचुरल गैस स्टूडेंट्स अभी हमने डायग्राम में देखा था, देखो नेचुरल गैस हमें ये कहाँ पे मिल रही थी, ये, ओके। अभी हमने देखा था कि नेचुरल गैस हमें यहाँ पर मिल रही, जहाँ पर ये पेट्रोलियम मिलता है उसी के ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पर हमें नेचुरल गैस मिलती है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आपको ये नेचुरल गैस के बारे में रीड करना है। और यहाँ पर दे रखा है इन इंडिया नेचुरल गैस इज़ फाउंड एट त्रिपुरा। ये यहाँ पर कुछ जगह दे रखे हैं जहाँ पर नेचुरल गैस फाउंड मिलती हैं, त्रिपुरा है, ओके। त्रिपुरा राजस्थान, त्रिपुरा राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और जो रिवर हैं कृष्णा एंड गोदावरी, उनका जो डेल्टा मिलता है, डेल्टा मीन्स स्टूडेंट जहाँ पर कृष्णा और गोदावरी आकर मिलती हैं वहाँ पर एक डेल्टा बनता है और वहाँ पर ये क्या है, नेचुरल गैस मिलती हैं, ओके। और हेयर इज गिवन अबाउट यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ओके। तो यू विल रीड अबाउट यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ओके। तो हेयर इज गिवन CNG, ओके, यू नो अबाउट CNG, ओके। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG, ओके। तो CNG की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। तो CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG का यूज कहाँ पर किया जाता है, ओके। तो ये इसके बारे में स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, ओके। मोटर कार्स, बसेस, ट्रक्स, ये सब में इसका स्टूडेंट्स CNG का यूज किया जाता है, ओके। इसके ये भी आप कर लोगे। और यहाँ पर दिया है कि जो नेचुरल ये CNG है, इसके जो पाइपलाइंस हैं, ओके, ये कहाँ कहाँ से हैं, सच एज ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ौदा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली, ओके। तो ये इसके पाइपलाइंस भी लगे हुए हैं, पीछे हुए हैं CNG लेने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है लिमिटेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी कुछ लिमिटेशन है, ओके। तो इसके बारे में भी आप रीड कर लेंगे। तो वी हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट फॉसिल्स फ्यूल लाइक coal, petroleum and natural gas are exhaustible natural resources. Two main limitation of fossil fuel are as follow: limited availability and air pollution। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि इसकी जो एक अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिटेड है, ओके। और सेकंड इसकी लिमिटेशन है एयर पॉल्यूशन।
तो बर्निंग ऑफ एयर ऑफ फॉसिल्स फ्यूल प्रोड्यूस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। दीज गैसेस प्रोड्यूस एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन। तो ये सब क्या होते हैं, एक इससे एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं इनसे एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये डायग्राम दिया है एयर पॉल्यूशन के बारे में है। ओके, और ये कुछ इसके बारे में स्टूडेंट दे रखा है कि लिमिटेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, तो इसके बारे में आप भी थोड़ा ये रीड कर लेंगे और ये आपने किया भी होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्सेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। कंजर्वेशन मीन्स स्टूडेंट्स सेफ्टी। ओके, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। Conservation is the wise and careful use of resources. We need to conserve fossil fuels, keeping in mind their limited ability. We should reduce the use of fossil fuel and use these fuel only when एब्सोल्युटली नेसेसरी। और इसके कुछ ये है कि हमें फॉसिल्स फ्यूल को तभी इसको हमें यूज करना चाहिए जब हमें एक जब ज़्यादा ही नेसेसरी अगर इसकी होती है तभी हमें इसका यूज करना चाहिए। तो ऐसे हम इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इसके कंजर्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, और ये है आपका यहाँ पर ये दिया है स्टूडेंट्स रिन्यूएबल्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। We should encourage the use of renewable source of energy like hydro energy, solar energy and wind energy to meet our energy needs. रिन्यूएबल स्टूडेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं जिनका हम उसका कुछ यूज कर सकते हैं। ओके, वो चेंज उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अगर हम उसका यूज करेंगे तो इसका जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल हैं इसका कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। ओके, आई होप you understood students. So now we will do exercise. Okay, here is some important points. We should take the following step to conserve energy. जो एनर्जी को हमें सेव करना है उसके कुछ यहाँ पे स्टेप दिए हैं स्टूडेंट्स। यूज फैन, लाइट्स, कूलर्स, रूम हीटर्स, एयर कंडीशनर एटसेट्रा ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। इनका हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमें इसकी नीड होती हो। यूज डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर पंप डेट यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये इनका यूज करना चाहिए स्टूडेंट जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका हमें इसमें यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी होती है। ओके, फ्यूल एफिशिएंट vehicles must be used and their engine must be properly maintained। स्टूडेंट्स जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल यूज करने वाले व्हीकल होते हैं उनको हमें प्रॉपरली हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 है CFL एंड LED। ओके, CFL एंड LED ये वल्व होते हैं। ओके, तो ये इनका यूज करने से क्या होता है, जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो हमारी सेव होती है। वी कैन से डैट द कंज्यूम लेस एनर्जी। तो ये जो वल्व हैं ये ऐसे हैं जिनसे एनर्जी कम यूज होती है। और क्या करना चाहिए, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, ये हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें यूज करना चाहिए। ओके, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल एज फॉर एज पॉसिबल।
और स्टूडेंट्स हमें यूज करना चाहिए यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए हमें प्रेशर कुकर यूज करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, नाउ ये एक्सरसाइज करनी है स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें होमवर्क स्टूडेंट्स ये है जो आपके ये हैं स्टूडेंट्स, 1 मिनट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये होमवर्क है। ओके, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी होमवर्क के लिए है, एंड वेरी शॉर्ट, ये भी क्या है, होमवर्क के लिए है। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ये मैं आपको अभी सेंड करूँगा, शॉर्ट, ओके, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, ये मैं आपको सेंड करूँगा और बाकी हैं ये आपको होमवर्क करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।